Good afternoon. Yes, good afternoon, all of you. Wait for a few minutes, let other students to join. We will start our lecture within 2 or 3 minutes. Okay. Okay. Last time, what we have done? I think last time we were doing neutralization reaction, right? No? Neutralization, preparation of salt. In that fourth point, neutralization of insoluble base, we have done, isn't it? Or we have to start with that? Please tell me, students. Am I audible to you? Students, am I audible to you? परिधि, आर्य, सक्षम, आवाज आ रही है बेटा? Okay, then please let me know. Okay, rejoin again. Yes, tell me, Arya. Yes, tell me. Last time what we have done, I think neutralization reaction we have to start, isn't it? No? Okay, good. So let's start without wasting our time. We will do neutralization, right? Okay, I'm going to share my camera. So here it is. First topic is what? Neutralization. Neutralization, right? Of insoluble base. Insoluble base. Neutralization of insoluble base, right? Insoluble base. What we have to do? Insoluble base are like oxide and hydroxide. We have already seen, right? Solubility हमने देखा है. जैसे कि okay, sorry students. Now I am audible. I think because of network issue problem हो गया था, disconnect हो गया था. Okay. So neutralization reaction we have to do, and we have already seen what is the insoluble and soluble, right now. Solubility we have already seen, right now. Sulfate and this one, right? Let me show you this one, right? So from this table we can say that all sulfate except this sulfate, right now. These are the exception. All sulfate soluble in nature. All chlorides are soluble in nature. Nitrates, nitrites, all nitrites are soluble in nature, right now. So these are all soluble salt and these are all insoluble salt. So all oxide are insoluble.
all hydroxide are insoluble, all phosphates are insoluble, while all carbonate are soluble. Means all means these are the exception, right? All nitrate, nitrites are soluble in nature. Sulfate, sulfates and chlorides are soluble in nature. So from this we can find out whether the reaction, whether the compound is soluble or not, right? So on the basis of this only we have to do neutralization of insoluble base. So we will take an example of oxide and hydroxide. So let's start with the oxide right now. Copper oxide we will take. Copper oxide when this is a means metallic oxide na. So we have already seen that all metallic oxide are nothing but basic in nature, right? And non-metallic oxide are acidic in nature, while the metallic oxides are what, basic in nature, right? As I told you. So this is a basic in nature. Copper oxide is a base, basic in nature, so base. So we will, for neutralization we will add sulfuric acid, that is H2SO4. What will happen? Simple beta. Positive part will go to negative part of the other substance, that is copper will go to sulfate, and we will get CuSO4, right? We will see the valency over here. Valency is balanced or not. First, the valency of copper is +2 and valency of sulfur is -2. So it is balanced. So there is no need to cross multiply. So it is balanced now. This H2 will goes to what? O, and we will get HO, right? H is +1 and O is -2. To balance this, I will put 2 over here. So now we got copper sulfate and what? Water. On reaction of copper oxide, right, with sulfuric acid, we got towards copper sulfate and water. So this is our salt. This is our what? Salt. This is water. So what we have concluded, when you react basic oxide or base, right now base or basic oxide, insoluble base, right, uh, with acid, this base is what? Insoluble base. ऐसा लिखो यहाँ पर, insoluble in nature. So when insoluble base is reacted with acid, it will give what? Salt and water. Understood? Understood? Let's take another example. PbO when react with another acid, I will take nitric acid over here. So same we will do, positive will goes to negative, this positive will goes to negative. So we will get PbNO3. Again what we will do, we will balance the valency over here. So what is the valency of Pb? Pb valency is +2, NO3 minus valency is -1. So balance out, I will put 2 over here, right? So we got lead nitrate, isn't it? And here NO3 is twice, so I will put 2 over here. So this H2 will combine with oxygen and I will get water again. So what I got? I got again salt and water on reaction of base with acid, insoluble base with acid. Let's take another example, that is hydroxide. So if you react copper hydroxide, CuOH twice, or lead OH twice, you can take both are similar to each other. So I will take only one example. So if you take copper hydroxide with sulfuric acid, so what will happen beta? Again we will do, positive will goes to negative, this positive will goes to negative. What we'll get? We will get copper sulfate, right? So here valence is balance. I will not show it again. And H will goes to OH, so I will get HOH, means that is water. Because 2H is there, so I will put 2 over here, right? Means total 4H, no? 2 to 4H is there, so I will put 2 over here to balance out. Understood? So again, this is an example which shows that base when react with acid, it gives salt and water. So we have completed neutralization of insoluble base. Now we will go for what? We will go for neutralization. Again, we will go for neutralization reaction. I'm keeping it aside. Let me write the heading. Neutralization of an alkali. Neutralization of an alkali. ठीक है? Now, alkali means what? Alkali is a salt of what? Alkali means what?
salt of potassium, salt of sodium, salt of ammonium. These these are nothing but a alkali. Salt means salt means we can say base of this, base of potassium, base of sodium, base of what दिस वन अमोनियम. अगर अमोनियम का हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसका सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लेंगे, द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस कटायन आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट अल्कली. सो लेट्स स्टार्ट. So we will take sodium hydroxide, hydroxides, these alkali, or we can say hydroxide of these. These hydroxides are soluble in nature. Please note it down. These hydroxide of this cation is soluble in nature. So we will react this hydroxide, right, with any acid. You can take any of acid, any mineral acid you can take. So if you react this cation, positive will goes to negative, this positive is no goes to negative, and you will get what, Na plus and Cl, NaCl and H2O, right? Na? Na will goes to Cl and H will goes to OH means to H2O, isn't it? So again we got what, salt and water, same reaction. Neutralization is what neutralization says. What is the definition of neutralization? When acid react with base, it gives salt and water. So always in any kind of reaction you will get what, when you react acid with base you will get salt and water. So this is our acid, this is our base. Understood? Let me take another example of KOH. If you react KOH with what, HNO3, isn't it? What will happen? K will goes to negative part, this positive will goes to, right? What I will get, KNO3. We will balance first, valencies balance over here. K valence is plus 1, NO3 valence is minus 1, so it is balanced, so there is no need to balance out. H will goes to OH and we will get H2O. So again we got potassium nitrate, that is a salt, and the name of this compound is potassium nitrate. So potassium nitrate and this is water. So again we got salt and water. Let me take another example of ammonium hydroxide. If you react ammonium hydroxide with any kind of acid, I will take H2SO4 over here. So this is positive part, it will goes to negative part, positive part will goes to negative part. So what I will get, ammonium and sulfate, right? Now ammonium valency is plus 1, sulfate valency is minus 2. So to balance out, I will do, I will take a bracket and write it 2 over here. Why bracket? Because अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे तो ये 42 दिखेगा, बिकॉज ये 2 जो लगा है वो खाली H को नहीं है, वो ये जो है वो अमोनियम आयन, अमोनियम मीन्स व्हाट, NH4 के लिए. सो आई विल टेक ब्रैकेट एंड राइट 2 ओवर हियर, right? So ammonium sulfate and H will goes to OH, right? Ammonium is 2 over here, so I will put 2 over here. So we have what, 2H 2OH. So 2H 2OH when combined you will get 2 moles of H2O. This is salt and this is the water again. Understood? So on conclusion, what we can say right now, what we can say that in neutralization reaction, as we all know that when acid react with base, it gives salt and water. So the base could be soluble or insoluble, right? Now if it is soluble or it is insoluble, always base always when react with acid, it gives salt and water, right? Now here we have taken an example of insoluble base, here we have taken example of soluble base. So both are opposite to each other, but when they react with acid, they always give salt and water. This is our conclusion. Understood? Tell me, understood or not? Now let me write the heading again. 6 point, that is action of dilute acid on carbonate and bicarbonate. Very easy and very famous reaction, you can say. मजेदार reaction है बेटा, right? Always note it down, or we can say always remember that uh, when you react carbonate or bicarbonate with any of thing, किसी से भी react, or mostly acid के साथ आप किसी से भी react करेंगे, you will get carbon dioxide as a byproduct. If you do decomposition reaction of carbon and bicarbonate, you will get carbon dioxide. If you react it with acid, you will get carbon dioxide as a byproduct. So most of reaction of carbonate and bicarbonate always gives carbon dioxide as a
बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग को एसिड से रिएक्शन करना है, तो ये तो कंपलसरी याद रखना, व्हेन यू रिएक्ट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विथ एसिड, राइट, you will get salt and carbon dioxide as a byproduct and water as a byproduct. I will show you. If you react carbonate and bicarbonate, right, with acid, dilute acid, right, dilute acid, I'm writing dilute, what you will get, as I told you, salt and water, salt and water, plus one more thing, carbon dioxide, carbon dioxide, isn't it? Let's take example. I will take calamine. Example of calamine, that is the common name of this zinc carbonate is calamine. So when you react calamine with nitric acid or any kind of acid, whatever you want, you can take. तो एग्जाम में जो आएगा वो लेना है, अगर नहीं दिया तो आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। सो डाइल्यूट मीन्स पानी है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत, यहाँ पे खाली डाइल्यूट लिख देने का, सेम तरीका वही है। व्हाट यू विल डू, पॉजिटिव विल गोज टू नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट इज नाइट्रेट, सो जिंक विल रिएक्ट विद नाइट्रेट, दैट इज ZnNO3 you will get, right? Zn valence is +2, this valence is -1, so first we will, what will we do, we will balance this out. So to balance out this, I will put 2 over here, bracket in bracket, understood, because this 2 is for NO3, all NO3, now not for oxygen, so we have to put bracket over here। बच्चे ये गलती करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, so this is wrong। So NO3 is over 2 over here, so I will put 2 over here, and ये जो H है ना, it will react with oxygen of this carbon dioxide CO3, and you will get H2O, and remaining जो बचा क्या है, remaining is carbon dioxide which will evolve, isn't it? Understood? Yes beta, understood। Let me take another example, that is sodium carbonate। When you react sodium carbonate, what is the formula of sodium carbonate? Sodium Na, and carbonate means CO3, but no, but here the valency of sodium is +1 and this valency is -2, so to balance out this I will put 2 over here। So what is the formula of sodium carbonate? So sodium carbonate formula is what? Na2C3, right now, this you should know how to write the formulas, right now. In the start only I have asked you that you should, you told me that you can write the formulas. So when you react sodium carbonate with H2SO4 or sulfuric acid, any kind of acid, so here I am taking sulfuric acid, so what will happen, as I told you, positive will goes to negative and negative positive will goes to this positive negative, right now. So sodium will goes to what, sulfate part, and we will get sodium sulfate over here. Again we will first we will balance the valencies after combining. So the valency of sodium is +1, valency of sulfate is -2. What I will do, I will put 2 over here, isn't it? अरे बोलो हाँ, yes or no? As I told you, H will goes to the oxygen part of CO3, and it will take oxygen from that, and it will form what, water, and remaining, what is remaining over there? Carbon dioxide is remaining, which will evolve, isn't it? Let me take one another example, two more example. This is a carbonate example. Now we will take two more example of bicarbonate. First we will take potassium bicarbonate. What is the formula of potassium bicarbonate? So this is the formula. Potassium, bi means hydrogen, so it is the name of this compound is one more name is there, that is potassium hydrogen carbonate and potassium bicarbonate, both are correct. I am writing over here the name of this compound, potassium bicarbonate or hydrogen carbonate, carbonate, both are correct. So let's start. If you react potassium bicarbonate with HCl, I am taking HCl, right? HCl, right? So what will happen beta? K will goes to what, Cl part, है ना? K कहाँ जाएगा बेटा? Cl के पास जाएगा, तो क्या बनेगा? KCl बनेगा, राइट? मैंने आपको क्या बोला था? व्हाट आई टोल्ड यू, कि यहाँ पर yes, we have to balance the reaction, right now. So हाँ, wait, wait,
Why it is so हाँ तो K will goes to the Cl तो you will get KCl। यहाँ पर से जो ये H है ना बेटा, एक मिनट वेट लेट मी चेक। ओके, यहाँ से समझा कि जो है वो Cl के पास जाएगा, यू विल गेट KCl over here, and this hydrogen will react with oxygen of this carbon, the carbon CO3, and you will get H2O, and carbon dioxide will remove from this. Understood? Right? We will take another example over here uh, of what we can say. We will take example of ammonium carbonate। अमोनियम कार्बोनेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट? NO2 CO3। अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम मीन्स NO3 NH4 हो गया, अमोनियम मीन्स व्हाट, NH4 and CO3। valency of NH4 is +1, the valency is -2, so balance out, to balance out I will put 2 over here। So therefore the formula of ammonium carbonate is what? Ammonium carbonate is NH4 twice CO3। When you react NH4 twice with HCl, again what will happen? Ammonium will goes to Cl part, you will get NH4Cl। because ammonium is 2 over here, so I will put 2 over here। यहाँ पे 2 लगाया तो क्या होगा, Cl2 हो गया, तो इसको बुरा लग जाएगा, तो I will put 2 over here, right ना। again this 2H is will take oxygen from CO3, and it will form water, and what is remaining over there? Carbon dioxide। Understood? All of you understood this? Which one? Which reaction? Bicarbonate। Okay, carbonate understood na beta? Yes. Okay, so we will take another example of bicarbonate, NaSCO3, right now? NaSCO3 when react with what? Any kind of acid you can take। let me take example over here, HNO3। I will take HNO3, right now? Here I had taken HCl, so I will take HNO3। What will happen? As I told you, positive will goes to negative part, then it will form NaNO3, isn't it? The valency of Na is +1, this valence is -1, so it is balanced, so there is no need to what, cross multiply or balance it out, right? Now again what I told you, water will remove from this, so this H will react with oxygen of CO3, so we will get H2O। what is remaining? अगर यहाँ से oxygen गया तो what is remaining over here? Carbon dioxide is remaining, so it will revolve। Understood? इजी है बेटा, इजी है, सिंपल याद रखना है आपको। व्हेन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विथ any kind of acid, it could be a sulfate acid, nitrate acid, or any mineral acid, any kind of acid is there, it will always give you a salt। इधर का कटायन उधर का अनायन को जोड़, एक सॉल्ट बन जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट को हम रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज, राइट ना। कोई भी टाइप की रिएक्शन करो, आपको हमेशा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट में आप ब्लाइंडली लिख सकते हैं, आप बिना सोचे समझे लिख दो, बाय प्रोडक्ट में वो लिख दो। अंडरस्टूड? यस, समझा बेटा? ओके, नाउ वी विल गो फॉर, यस, लेट take a screenshot of this page। I have taken a different example from your book, right? So you can take screenshot of this page for your reference। This page you want? You have written? Okay. What about other? If you want to take, you can take a screenshot of this page also। Yeah, done now? Okay, sure। So we will go for next page। In next page what is given, we have to preparation, we have to do the preparation of some specific salt, right ना। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब हम लोग लैब में प्रिपरेशन, ये तो रिएक्शन वगैरह देख लिया हमने। नाउ लैब में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कुछ सॉल्ट का हम लोग करेंगे।
preparation of soluble salt and preparation of some insoluble salt, right now. Preparation of soluble salt means what? Here it is given in your textbook. Sulfate salt is given right now: copper sulfate, sodium sulfate, ferrous sulfate, zinc sulfate, and chloride, uh, ferric chloride. So this type of salt is given which are soluble in nature. We all know that all chlorides and sulfates are soluble in nature. So here therefore it is taken the example of that only, that is sulfate and chloride. Understood? तो सल्फेट एंड क्लोराइड का एग्जांपल दिया है, तो वी हैव टू प्रिपेयर दैट फेरिक क्लोराइड मींस FeCl3 will form. Ferric chloride is also called as iron 3 chloride, right ना बेटा? iron 3 chloride and ferric chloride both are correct. Fe when is in +3 form, so Fe is called as ferric. ये आप दिमाग में रखो. अगर Fe +2 फॉर्म में रहेगा, Fe अगर +2 फॉर्म में रहेगा, +2 फॉर्म में, तो इट इज कॉल्ड एज फेरस. So you can call FeCl3 as ferric chloride, FeCl2 as ferrous chloride. Understood? Or this ferric chloride is also called as iron. Fe is iron, so you can write iron because the valency of iron is +3. So here it is written in Roman, that is 3, and chloride. So it is also called as iron 3 chloride, or you can even write FeCl2 ferrous chloride is also called as iron 2 chloride. Understood? So this 2 and 3 is nothing but a valency of that chloride, valency of that iron, right? Oxidation state of iron is mentioned in Roman. Understood? So the very first we have to prepare, that is iron 3 chloride, that is ferric chloride, FeCl3 by direct combination method. Which direct combination? As I told you, ferric chloride is what? Soluble salt. So let's start with soluble salt. Ferric chloride. It is here. It is given. So first reaction, direct combination means what? Directly we will combine ferrous with iron with what? क्लोरीन, राइट ना. डायरेक्टली हम लोग क्या कंबाइन करेंगे, मैं पहले रिएक्शन बताता हूँ. सो व्हेन यू कंबाइन Fe with Cl, क्लोरीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Cl2, राइट ना. Cl always exists in the form of diatomic nature, right ना. So when you react with iron with chlorine, it will form, because iron is +3 state, so it will form FeCl3, isn't it? Because here Cl is 2, here Cl is 3. I told you earlier only कि जब भी ऑड नंबर दिखेंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल बैलेंस इट इन इवन नंबर. So to balance it in even number, what I will do, I will put 2 over here to balance out, or to make it even कर लेने का. उसको मैंने even करने के लिए 2 लगा दिया. तो Cl कितना हो गया? 6 हो गया, तो I will put 3 over here. Fe कितना हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया. रिएक्शन बैलेंस. अंडरस्टूड? Okay. Now next one, preparation. How to prepare this one? I will show you how to prepare that FeCl3, right now. So what we will do, we will take a combustion tube. This is a combustion tube. Huh? This tube is called as combustion tube. So we will take our iron wire, or we can say iron foils. Foils को क्या बोलते हैं? आयरन के टुकड़े. Iron foils in a combustion tube, right now. We will take iron foil in a combustion tube, and what we will do, we will pass our dry chlorine gas. Dry chlorine gas will pass from this chamber, this hole, and through this chamber. ये जो combustion tube है, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग chlorine gas को pass करेंगे, right ना. While passing, what we will do, we will slowly heat also, right ना. थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप इज व्हाट? इन फर्स्ट स्टेप का पहला पॉइंट क्या है हम लोग को दिया हुआ है? फर्स्ट वी विल टेक iron pieces, or we can say iron foil in the combustion tube. Then we will pass, the second point is there, we will pass chlorine gas from this iron from this combustion tube, and step number 2 is given. Then we will what we will do, then we will what, slowly heat this chamber. वो जो chamber है या combustion tube है, उसको हम लोग थोड़ा सा हीट करेंगे. तो क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगा, और
जैसे रिएक्शन हम लोग को दिख रहा है रिएक्शन हो रहा है, तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग हीटिंग को डिसकंटिन्यू करेंगे। देन हीटिंग को हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज FeCl3 जो है इट इज़ अ सॉल्ट विच इज़ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर मीन्स व्हाट, थोड़ा सा हीट मिलेगा तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ने वाला है, मतलब इवापोरेट हो जाती है, राइट ना। सबलाइम होता है, सबलाइम। सबलाइम समझते ना बेटा, सब्लिमेशन, सबलाइम सॉल्ट क्या होता है, जो हीट पे डायरेक्टली सॉलिड से किस में हो जाएगा, वेपर में फॉर्म में चले जाएगा। तो बिकॉज FeCl3 सब्लिमेटेड मटेरियल और वी कैन से इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, उड़ने वाला है, ये एवोपरेट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जैसे हीट करूँगा, आफ्टर हीटिंग जो सॉल्ट फॉर्म हुआ यहाँ पर FeCl3, बिकॉज ऑफ हीटिंग ये क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। और एवोपरेट होके क्या होगा, ये आगे के चेम्बर में बाय दिस ट्यूब, ये ट्यूब के जरिए आगे के चेम्बर में जाएगा। यहाँ तक समझा। नेक्स्ट चेम्बर में यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर वो चेम्बर में कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इसका क्या काम है, व्हाट इज द, अरे यार सॉरी, what is the use of this chamber, last chamber you can see over here, है ना। so what is the use of this chamber, wait हाँ, this chamber I'm asking the about this chamber, calcium chloride fuse dry anhydrous। यहाँ पे फ्यूज लिखा है, मोस्टली जगह पे क्या लिखा होता है, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, पानी के लिए तरस रहा है, प्यासा है वो, है ना, बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर से निकाल दिया गया है, पानी नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ डेलिक्वेशन नेचर। डेलिक्वेशन नेचर मतलब क्या होता है, सॉरी, जो FeCl3 है वो डेलिक्वेशन नेचर होता है। FeCl3 डेलिक्वेशन नेचर का क्या होता है, डेलिक्वेशन मतलब क्या, वो मटेरियल जो पानी को एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, पिघल जाता है। हम लोग देखे होंगे घर के अंदर जो नमक होता है, नमक को हम लोग क्या करेंगे, को बहुत देर तक खुला रखेंगे तो पानी पकड़ लेता है ना। शक्कर भी पानी पकड़ लेती है, मगर वो उसकी डेलिक्वेशन नेचर जो है वो स्लो होता है। बट FeCl3 का डेलिक्वेशन नेचर बहुत ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट FeCl3 थोड़ा भी अगर मॉइस्चर रहेगा तो पानी पकड़ लेगा, और फिर हमारा FeCl3 है वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, फिर मगर हमारा काम बढ़ जाएगा, पानी निकालना पड़ेगा उसमें से। तो बेटर है, व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली इसके अंदर ही, यहाँ पर ये चेंबर में ये CaCl2 भी डाल सकते हैं। ये चेंबर में आप CaCl2 डायरेक्ट यहाँ डालेंगे तो भी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर आप यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट करो और यहाँ पर CaCl2 को लो, तो क्या होगा, जो गैस है यहाँ से होते हुए यहाँ पे जब टकराएगी, तो यहाँ से जब इसमें घूमेगी वो गैस, तो ये यहाँ पर वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जो FeCl3 में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रहेगा, वो पानी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और वापस से गैस वापस से यही चेंबर में आएगी। तो इस तरह से वो होते रहेगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, हम लोग को जो FeCl3 मिलेगा वो पूरा अनहाइड्रस मिलेगा, उसमें पानी नहीं रहेगा, और बिकॉज ऑफ दैट वो जो FeCl3 जो है मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। अंडरस्टूड। और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे कंटेनर में, एकदम एयर टाइट कंटेनर में इसको हम लोग रख देते हैं, स्टोर करते हैं FeCl3 को। वाई एयर टाइट कंटेनर, बिकॉज वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके वो पिघल जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। अंडरस्टूड। यस स्टूडेंट्स, समझा, एक ही बच्चे को समझा, ओनली परिधि, वेरी गुड बेटा, यू शुड रिस्पॉन्ड। हाँ, जब भी पूछा जाए आपको रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ आयरन टू सल्फेट। आयरन टू सल्फेट को कैसे प्रिपेयर करना है, सो फर्स्ट विल डू द रिएक्शन ओवर हियर। सो आयरन टू सल्फेट और जिंक सल्फेट, आप आयरन टू सल्फेट लो, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, कोई बताएगा वाई दिस इज सो। हियर 2 इज मेंशन एंड हियर जिंक के साथ में 2 मेंशन नहीं किया है, वाई दिस इज सो, नो, नो आइडिया, बोलो बेटा, रिस्पॉन्ड करो, आपको आइडिया नहीं है। हाँ, तो बेटा बहुत इजी है, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आयरन टू सल्फेट, आयरन एक्चुअली में iron always exists in two valency, that is +2 and +3. But zinc, if you talk about zinc, because it is always exists in one valency, that is +2, so एक ही valency है, तो there is no need to
मेंशन ओवर देयर कि भाई आयरन जो जिंक है +2 स्टेट में, बट आयरन जब अगर लिखूंगा मैं FeSO4 तो सामने वाले को मैं बोलूँगा आयरन सल्फेट, एग्जाम्पल मैंने लिखा आयरन सल्फेट, राइट ना। तो एग्जाम सामने वाले को क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आयरन जो है वो कौन से स्टेट में है, +2 स्टेट में है या +3 स्टेट में। अगर मेरे को फॉर्मूला बनाने का है तो मेरे को ऑब्वियसली पता होना चाहिए आयरन कौन से स्टेट में है ना। तो देयरफॉर बिकॉज आयरन जो है 2 स्टेट में होता है, तो देयरफॉर वी हैव टू मेंशन ओवर देयर 2। अंडरस्टूड? Okay, so let's start. We will do the reaction. So I will go for zinc sulfate wala reaction. Same है, iron wala reaction same है. So you can do it by yourself, right now. So I will go for zinc sulfate. When you react zinc sulfate with H2SO4, what will happen, beta? Zinc will displace hydrogen. Hydrogen को displace करेगा and उसकी जगह ले लेगा. What I will get? I will get zinc SO4, ZnSO4. एंड जिंक सल्फेट मीन्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस क्या होंगी, इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है गैस के फॉर्म में रहेगी और वो उड़ जाएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? रिएक्शन समझा? यस बेटा। नाउ प्रिपरेशन देखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, हाउ टू प्रिपेयर। So what we will do, we will take a dilute sulfuric acid in a beaker and we will add iron or zinc granules. Granules मतलब होता है उसके टुकड़े। तो ग्रैनुल्स से आयरन के ग्रैनुल्स और जिंक के ग्रैनुल्स हम लोग क्या करेंगे, आयरन के टुकड़े या जिंक के उसके अंदर डालेंगे, राइट ना। फिलिंग्स, राइट ना, आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स का मतलब ही वही होता है आयरन के टुकड़े, और जिंक हम लोग डालेंगे इसके अंदर। अब मैं जैसे इसके अंदर जिंक डालूंगा, आयरन डालूंगा, वी नो दैट बिकॉज आयरन एंड जिंक आर more reactive than hydrogen. In the reactivity series, if you see na, hydrogen is less reactive than iron or zinc. So because iron and zinc are more reactive than hydrogen, they will displace hydrogen, है ना, and उसकी जगह ले लेंगे. So in this beaker reaction will take place and ZnSO4 or iron, if you add iron, so FeSO4 will form in this beaker, right ना। अब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जैसे रिएक्शन होने के बाद, तो व्हाट वी विल डू, वी विल फिल्टर। सो इसमें फॉर्म हो गया। अभी सोल्यूशन में थोड़ा सा आयरन के टुकड़े बचे रहेंगे, है ना, आयरन के टुकड़े या फिर जिंक अगर डालो तो जिंक बचा रहेगा। तो टू रिमूव दैट जिंक और रिमूव दैट आयरन फिलिंग्स और टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी, कचरा मट्टी वगैरह अगर कुछ है तो उसको रिमूव करने के लिए व्हाट विल डू, विल फिल्टर इट, फिल्टर करेंगे। आफ्टर फिल्टर करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। So this filtrate is what? It is a solution of what? Zinc sulfate or iron sulfate, right now. Now this filtrate consists of ZnSO4 और iron sulfate, जो भी मैंने लिया हूँ स्टार्ट में उसके हिसाब से। अब मेरे को क्या करना है, अब इसमें से मेरे को, इसमें बहुत सारा पानी है तो पानी हटा दूंगा तो जिंक सल्फेट मिल जाएगा। व्हाट वी नीड, वी वांट दिस जिंक सल्फेट, सो आई विल रिमूव द वाटर, so I will heat that this filtrate. So what we will do, we will heat it to the point of crystallization. Point of crystallization मतलब क्या, मैं हल्की सी हीट करते जाऊंगा, हीट करते जाऊंगा तो मेरे को हल्का सा जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर हल्का सा क्रिस्टलाइजेशन बनता दिखेगा, the point at which crystallization starts, that point is called as point of crystallization. तो क्रिस्टलाइजेशन हल्का सा बनता हुआ दिखेगा, at that point we will what, remove that heat. हम लोग हीट को निकाल देंगे, वो पॉइंट को क्या करेंगे, हीट को। अब हीट को क्यों नहीं निकाल दिया, आप बोलेंगे सर हम लोग अगर पूरा पानी उड़ा देंगे तो जो बचेगा सॉलिड जो बचेगा वो जिंक सल्फेट ही रहेगा। तो व्हाट इज द नीड टू रिमूव हीट अर्लियर, राइट ना। अभी भी पानी है थोड़ा सा, पर मैं पहले ही क्यों निकाला, बिकॉज इफ़ यू हीट ना, हो सकता है कि आपका जिंक सल्फेट जल जाए। पहला रीज़न है कि आपका जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ये पहला रीज़न है। बट मेन रीज़न, उससे ज़्यादा मेन रीज़न, कुछ कंपाउंड तो जलते भी नहीं है, फिर भी उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग तब तक ही करते जब तक क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हीटिंग शुड बी टिल एट द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओनली, राइट ना। नोट इट डाउन और इसको दिमाग में रखो। तो ये हमेशा होगा जब भी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स व्हाट, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड। इफ द कंपाउंड विच इज फॉर्म इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, so you will go for this method. If the compound is amorphous in nature, so I will explain you amorphous रहेगा तो क्या करना है, इसके बाद वाले में बताऊंगा। So if the compound is what, crystalline in nature, so you will heat the solution, you will heat the filtrate at the point of crystallization. यहाँ पर थोड़ा सा पानी बच जाएगा और क्रिस्टल आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पॉइंट हम लोग हीटिंग को हटा देंगे और उसके बाद इसको हल्का हल्का कूल करेंगे।
मैं सेकेंड पॉइंट बता रहा था क्यों यहाँ पर हम लोग हीटिंग को रोके। बिकॉज बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं सॉलिड को लाऊंगा तो सॉलिड क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं आता। कौन से फॉर्म में आता? क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं आता। Okay. Now it is visible. Okay. So what we were discussing, step number three. So here we can say that we have to heat the filtrate. This solution is called as filtrate. So we have to heat the filtrate at the point of crystallization. Why this is so? कि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको हीट पूरा करूंगा तो हम लोग को जो मिलेगा उसमें क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होंगे। बिकॉज अवर सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन नेचर, तो हम लोग को बेटर है कि उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही हम लोग उसको फाइंड आउट करें, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। तो हम लोग को अगर कंपाउंड का एक्सट्रैक्ट करना है तो इट शुड बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल यू विल व्हाट हीट एट द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे आने के बाद हीटिंग को हटा देंगे और स्लोली स्लोली इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। स्लोली स्लोली करेंगे। अगर कूलिंग भी फास्ट नहीं करेंगे, कूलिंग जितनी फास्ट करेंगे उतना क्रिस्टल अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। अगर आपको अच्छे क्रिस्टल चाहिए तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू व्हाट कूल इट स्लोली। स्लोली स्लोली कूल करेंगे तो यू विल गेट क्रिस्टल ऑफ व्हाट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट। अंडरस्टूड? अरे समझ में आ रहा है, लेक्चर चल रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। अब भाई लोग अंदर मतलब समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। बात करे तू तू वो छोड़, बंद जो है, मगर बात करे तू। सब चीजें बात आवाज आती है लोग, बच्चे लोग। सॉरी स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना, यहाँ तक समझा बेटा? प्लीज लेट मी नो अंडरस्टूड और नॉट। Okay, so we have understood the preparation of salt, which is from displacement reaction. ना displacement reaction के जरिए कैसे करते हैं, तो वो we have understood. We have seen the preparation and we have seen the reaction of it. Now we will go for precipitation reaction. Precipitation means what? We will precipitate out the salt. Salt को precipitate out करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। Salt जो है precipitate out कैसे होता है? So in this case, because precipitation reaction is nothing but a double displacement reaction. Always precipitation reaction you can mention this. This is nothing but a double displacement reaction. Mention that क्योंकि double displacement reaction में ही हमेशा क्या होगा, precipitation होता है, right? So here we have taken an example of what lead nitrate with sodium chloride. What we will do, first we will see the reaction part, then we will see the preparation part. So let's start with reaction PbNO3. We will start with PbNO3, sorry, PbNO3 twice, right? When it is react with what, uh, sodium chloride, that is NaCl, right? What will happen, this positive will goes to negative part, this positive will goes to negative part. What will happen, we will get PbCl. The valency of Pb is +2, valency of Cl is -1. So to balance out this, what I will do, I will put 2 over here. Understood?
right? Since Cl is 2 over here, so I will put 2 over here. So we will get what? Na will goes to NO3, right? And we will get NaNO3 because Na valence is plus 1 and NO3 valence is minus 1, so it is balanced out. So there is no need to what cross multiply or balance it out. Now, because Na is 2 over here, I will put 2 over here and this reaction is now balanced. Understood the reaction? समझा बेटा? Because PbCl3 is what solid in nature, so it will be precipitate out. Precipitation का symbol क्या होता है? Downward arrow. नीचे एरो बनाएंगे तो उसका मतलब ये कंपलसरी है आपको दिखाना, राइट ना? इट इज कंपलसरी. तो डाउनवर्ड एरो बनाया इसका मतलब क्या है? वो चीज क्या हो गई? सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है. अंडरस्टूड द रिएक्शन और शुड आई रिपीट इट? टेल मी. बी फास्ट. अरे repeat once again. What about other student? Understood or they also want to repeat? Okay. Two students are there to repeat, so I will repeat. Okay, don't worry about it. In notebook, right? तो नोटबुक में करेंगे हम लोग तो बेटर रहेगा. So what is example? We have to react lead nitrate with sodium chloride. What is the formula of nitrate? I don't know. So I will take lead. What is the formula of nitrate? NO3. First we will form lead nitrate. What is the valency of lead? Is plus 2. Valency of nitrate is minus 1. So to balance out, what I will do? I will write 2 over here. Isn't it? So this is the formula of what? Lead nitrate. First part is over. Now we have to react with sodium chloride. What is the formula of sodium chloride? Sodium is Na, Cl is what? Chloride. The valency of Na is plus 1, this valence is minus 1. It is balanced, so there is no need to cross multiply or balance it out. Now we have to perform the reaction. So what will happen? This positive will goes to negative part, this positive will goes to negative part. So when Pb react with Cl, we will see what we will get PbCl. Now valency of Pb is plus 2, valency of Cl is minus 1. What we will do, beta? We will what? Balance it out by writing 2 over here. Isn't it? समझ में आ रहा है? Cl is 2 over here. I will put 2 over here to balance this Cl. राइट साइड में Cl दो है तो लेफ्ट साइड में Cl1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया. Now Na will goes to NO3, Na will goes to NO3. Na is plus 1, NO2 is minus 1, so there is no need to cross multiply. This compound is correct, sodium nitrate. Now because left side में कितना है 2 है तो I will put 2 over here. Now this reaction is balanced. Okay, understood? So what we got when lead nitrate react with sodium chloride, right? It forms lead chloride. And what is this beta? Sodium bolo nitrate. Understood? Any doubt? Beta, you should know how to write, how to form the compound. You know na how to write the structure formulas of the compound. Any kind of salt. अगर मैं आपको दूंगा तो आपको आना चाहिए. आएगा ना बेटा? ये आपने स्टार्ट में बोला तो आता है हम लोगों को. आता है ना? Yes. Okay. So understood na? So valency, sorry, reaction part is over. Now we will go for preparation of lead chloride, that is PbCl2 in precipitate form. What we will do, right? First we will take a solution of lead nitrate, because lead nitrate is sorry lead nitrate because lead nitrate is soluble in nature, they are crystalline in nature, so they will dissolve in water. So what first we will take water, है ना? पहले हम लोग क्या करेंगे? वाटर लेंगे एंड वी विल ऐड पीबी NO3 इन इट. लेड नाइट्रेट इसमें ऐड करेंगे और ये स्टरर से हम लोग स्टर करेंगे, राइट? आफ्टर स्टरिंग यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ व्हाट? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. क्या मिलेगा हम लोग को? ये जो सोल्यूशन है पानी में डिसॉल्व करने के बाद यू विल गेट लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. नाउ इन दिस सोल्यूशन यू विल ऐड अनदर सोल्यूशन. अगर एक अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे, वो टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? पानी लेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, NaCl डालेंगे, और वी नो दैट NaCl इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. तो इसको शेक करेंगे, यहाँ पे हाथ लग के शेक करेंगे, तो ये सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? NaCl सोल्यूशन बनेगा. तो नाउ वी हैव टू सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड NaCl सोल्यूशन. नाउ फर्स्ट lead nitrate solution is there. I will put
स्टर कर देंगे। आफ्टर स्टरिंग व्हाट वी विल गेट, ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये मूव आराम से हो जाएंगे, देयर इज नो नीड टू हीट इट, हीट करने की जरूरत नहीं। स्टरिंग करते करते यही क्या होगा, आपको दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये पीबी जो है सीएल के पास जा रहा है एंड PbCl2 फॉर्म हो रहा है, बिकॉज PbCl2 इज व्हाइट कलर पाउडर, PbCl2 इज व्हाइट कलर पाउडर, और जो कि प्रेसिपिटेट हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है वो टर्बिड होते जाएगा। कैसा होते जाएगा, टर्बिड मतलब क्या होगा, हल्का सा व्हाइट होते जाएगा, व्हाइट पीपीटी की वजह से, व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही है ना, बिकॉज ये व्हाइट होते जाएगा। नाउ जैसे ये पूरा व्हाइट हो जाएगा, इसका मतलब पूरा के पूरा हमारा सोल्यूशन कंट्रोल कर ये हो गया है, ये पूरा NaCl सोल्यूशन पूरा ऐड हो गया। उसके बाद अच्छे से हीट कर ले, अच्छे से स्टर कर लेने का। आफ्टर स्टरिंग यू विल गेट व्हाइट, एकदम व्हाइट कलर का सोल्यूशन, जिसमें क्या हो गया, व्हाइट पीपीटी है, किसकी व्हाइट पीपीटी है, PbCl2 की, राइट। नाउ what we need PbCl2, right ना। so what we will do, we will filter it out, फिल्टर करेंगे हम लोग। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो NaO3 ये क्या है, सोल्यूबल है पानी के अंदर, तो वो इसमें आ जाएगा, नीचे पानी के अंदर आ जाएगा, और ये जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, PbCl2 आएगा। इन फिल्टर पेपर में we get PbCl2 because it is solid in nature, तो वो क्या पास आउट नहीं होगा, because NaCl3 is also solid but it is soluble in water, तो ये पानी के अंदर है तो क्या होगा, डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। एंड ये क्या होगा, बिकॉज ये पानी के फॉर्म में था, सोल्यूशन फॉर्म में, तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो जो बीकर में है, इट इज नथिंग बट NaNO3 सोल्यूशन, राइट। एंड जो फिल्टर पेपर पे है वो क्या है, PbCl2 सॉलिड है। अंडरस्टूड। Now, again, what we will do, we have precipitate of what, PbCl2, PbCl2 के precipitate है, मगर again because PbCl2 is also crystalline in nature, कैसे फॉर्म में बैठा है वो, क्रिस्टलाइन है, क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन नेचर का है, तो हम लोग को ये जो मिलेगा वो क्रिस्टलाइन नहीं मिलेगा, मतलब वो एमॉर्फस फॉर्म में, मतलब टुकड़े टुकड़े में एकदम क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो बिकॉज हम लोग को अगर किसी को देना है तो क्रिस्टल फॉर्म में देना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म को प्योर माना जाता है। तो प्योर करने के लिए व्हाट विल डू, अगेन इसको ये जो सॉलिड था उसको डिसॉल्व करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्युबल है कि PbCl2 का सॉल्युबल। तो ये क्या होगा, इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और हीट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में डिसॉल्व नहीं होगा, हीट करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, फिर से वही उसको सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे टिल पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हल्के हल्के क्रिस्टल आने लगेंगे। एट दैट पॉइंट हम लोग स्टॉप, हीटिंग को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पानी जो सोल्यूशन बचा है उसको कूल करेंगे। कूल करेंगे तो आपको क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगी, राइट ना। और जो क्रिस्टल फॉर्म हुए नीडल शेप के क्रिस्टल फॉर्म होंगे, और क्रिस्टल फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, क्रिस्टल फॉर्म हुए। अब इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद यू विल गेट द व्हाट, needle shape crystal, understood। any doubt is there। अच्छा बेटा, यहाँ पे जब हम लोग इसको फिल्टर कर देना, फिल्टर करने के बाद ये फिल्टर पे, मैं फिल्टर पेपर पे आ गया, एग्जाम्पल ये फिल्टर पेपर है, ऐसा रखा हुआ मैंने, इधर फिल्टर पेपर लगा हुआ, फिल्टर कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, बराबर। पर हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉश भी करते हैं। क्यों वॉश करते हैं मालूम, ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं बता रहा हूँ, इसको वॉश करते हैं बिकॉज टू रिमूव द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। हम लोग के जो नॉर्मली इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, दिस इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन। तो इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन में होता क्या है, आपने ए बनाया तो बी भी थोड़ा बहुत कभी कभी बन जाता है। तो ये बी जो है, बी भी क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। तो अगर ये बन भी गया है तो अगर मैं पानी से वॉश करूंगा ना नाम में इसमें, तो ये जो बी है वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर और चले जाएगा। मतलब क्या होगा, बी जो है थोड़ा 0.5% भी अगर है तो वो भी गायब हो जाएगा, अपने को प्योर फॉर्म में ई मिलेगा। अंडरस्टूड, जो मैं बना, अंडरस्टूड। तो उसको समझा, ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे, अगेन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जरिए ही हम लोग को करना है, तो उसी के जरिए करेंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब मैंने अगेन बोला था, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इन दिस केस व्हाट विल डू, we will react calcium chloride with sodium carbonate, very easy।
take a calcium chloride CaCl2. If you react with sodium carbonate, what is the formula of sodium carbonate? Na2CO3. कैसे बना मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता है ना, मैं बता चुका हूँ. So Ca will goes to CO3 positive, this positive will goes to negative, and we will get what? CaCO3. The valency of Ca is +2, this valence is -2, valence is balanced, so there is no need to cross multiply. Na will goes to Cl, so NaCl will form, right? Since Na is +1 and Cl is -1, so there is no need to balance out. So all is balanced. Now Na is 2 over here, so I will put 2 over here to balance the reaction. Now this reaction is balanced out. Understood? So we got the calcium carbonate from this reaction, and this calcium carbonate is what? Insoluble in nature, or we can say that this calcium carbonate is uh, uh, what precipitate, will form precipitate, right ना. So same kind जैसे हमने इससे पहले किया था वैसे ही करेंगे. एक हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किया है, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो कैल्शियम रिएक्शन होंगी और कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर जो है बेटा, ये कैसे व्हाइट कलर बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आगे. इस चैप्टर में ही आपको पढ़ना है व्हाइट कैसे मालूम पड़ रहा है, और कलर है तो कलर कैसे मालूम पड़ता है. तो जो हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से लेकर 17 में जो भी है ग्रुप के एलिमेंट है, उसके अगर कोई कटायन रहेंगे और उसके अगर हमारा सॉल्ट रहेगा तो वो क्या है, कलरलेस होता है, वाइट कलर का होता है. और अगर समझो एग्जांपल ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट दैट इज ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, उसके अगर कोई कटायन रहेंगे और उसका कोई सॉल्ट रहेगा, एग्जांपल कॉपर का कोई सॉल्ट है, जिंक का कोई सॉल्ट है, तो ये सब सॉल्ट जो है वो कलर वाले रहेंगे. ग्रुप 1 सोडियम कोई सॉल्ट है तो वो क्या आएगा, कलरलेस. पोटेशियम का कोई सॉल्ट है तो क्या आएगा, कलरलेस. तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कलरलेस है, कौन सा कलरफुल कंपाउंड है. अंडरस्टूड. सो ये बिकॉज व्हाइट कलर का पाउडर रहता है तो व्हाइट यहाँ पे पीपीटी दिखेंगी हम लोग को, जो हमारा सोल्यूशन है वो टर्बिड बन जाएगा, राइट ना. वही सेम वापस से हम लोग करेंगे, जो हम लोग को पीपीटी मिली है उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, राइट ना, फिल्टर करेंगे केयरफुली, और उसको वॉश करेंगे किससे, कोल्ड वाटर से. जो ना क्यों कोल्ड वाटर से वॉश किए, टू रिमूव द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, राइट ना. बिकॉज हियर कैल्शियम कार्बोनेट इज एमॉर्फस इन नेचर. एमॉर्फस मतलब क्या होता है, तो पाउडर की तरह होता है. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल बनेगा. तो ये एमॉर्फस के नेचर का ये हमेशा पाउडर ही रहता है. तो अगर क्रिस्टल बनेगा ही नहीं तो देयर इज नो नीड टू वो हीट करने का जो प्रोसेस था मैंने बताया था कि टू द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग हीट करेंगे एंड ऑल, वो करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम लोग को पाउडर मिल चुका है, फिल्टर किया हमने उसको, कोल्ड वाटर से वॉश किए ताकि इसमें से इम्प्योरिटी निकल जाए, एंड देन वी विल ड्राई, एंड ड्राई करने के बाद हम लोग को कंपाउंड मिल जाएगा. अंडरस्टूड? यस, टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? All of you understood or only Paidi understood? Arya, Saksham understood. Very good. How much time is left? What is the timing? 45, no? 3:45 the timing is there, no? Yes? 4:45 the timing है आपका? नहीं पता? Okay. Till 45. So we will continue because it's 4:30. So we'll continue. So next one is what? Neutralization reaction. Neutralization of insoluble waste. Now we will prepare another salt, that is copper to sulfate, that is copper sulfate. Again here 2 is mentioned because copper always exists in 2 states, that is +1 and +2. So because it is exists in 2 states, so there is need to mention the state of copper, that is 2. So therefore it is mentioned copper 2 state sulfate. Now copper sulfate form करना है. How to prepare copper sulfate? What you will do? You will take copper oxide and you will add H2SO4 in it, right now. What will happen? Copper will goes to SO4 part, H2 will goes to H2O oxygen part. You will get copper sulfate. Copper sulfate is what? Blue in color, blue color का होता है, and this copper oxide is black in color. तो ब्लैक से ब्लू बन गया, इसका मतलब आपका कॉपर सल्फेट फॉर्म हो गया. प्लस ये H2 जाएगा ऑक्सीजन के पास एंड यू विल गेट H2O. अंडरस्टूड? नाउ रिएक्शन इज ओवर, राइट. रिएक्शन हमने देख लिया. इवन यू कैन डू इट बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैसे करते हैं मैंने करवा चुका हूँ रिएक्शन, राइट ना. वी हैव सीन दैट. नाउ वी विल गो फॉर प्रिपरेशन पार्ट. हाउ टू प्रिपेयर दिस रिएक्शन? फर्स्ट वी विल टेक अ ब्रेकर in which we will take a
dilute sulfuric acid लेंगे, and in that what we will do, we will add CuO और कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई भी एक डालेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद कॉपर ऑक्साइड से ही हम लोग देखते हैं। तो आप कॉपर ऑक्साइड डालेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड डालेंगे इसके अंदर तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मगर रिएक्शन जल्दी से होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे ताकि कोई भी पार्ट CuO का बचे नहीं, अच्छे से रिएक्शन हो जाए। तो कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद H2SO4 एंड इट विल फॉर्म व्हाट, कॉपर सल्फेट, CuSO4 फॉर्म हो चुका है। और सोल्यूशन जो है अचानक से, ये जो सोल्यूशन लाइट येलो कलर का दिख रहा था, क्योंकि हल्का सा लाइट येलो कलर का सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो लाइट येलो कलर का सोल्यूशन को अचानक से क्या हो जाएगा, बिकॉज कॉपर सल्फेट फॉर्म हो चुका है, तो इट विल टर्न इनटू व्हाट, ब्लू कलर सोल्यूशन, राइट ना, राइट। देन व्हाट वी विल डू, वी विल फिल्टर इट, व्हाट, फिल्टर करेंगे, राइट। फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन में जो ऊपर जो फिल्टर पे है ना, व्हाट वी विल गेट व्हाट, कॉपर सल्फेट ऊपर मिल जाएगा, राइट। एक मिनट, ओके सॉरी, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज नॉट अ प्रेसिपिटेट, कॉपर सल्फेट जो है बेटा प्रेसिपिटेट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू दिखा क्या, नहीं, तो देयर इज नो नीड टू, मतलब वो फिल्टर करके वैसी बात नहीं, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन किया हुआ है, दिस फिल्ट्रेशन इज फॉर रिमूवल ऑफ रेसिडुअल मटेरियल, मतलब अगर इसमें मट्टी रह गई या कोई और चीज़ रह गई, जो कच्चा मटेरियल है कुछ जो अनवांटेड है, कॉपर सल्फेट के अलावा कोई और चीज़ बन गई है या कोई और चीज़ पहले से थी जो अनवांटेड थी, टू रिमूव दैट वी विल फिल्टर इट आउट। और अगेन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वाटर का वॉश देंगे ताकि अगर कोई और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो भी हट जाए, ठीक है। फिल्टर कर लिया हमने, अभी फिल्टर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेशन है या फिल्ट्रेट है, उसमें क्या आगे कॉपर सल्फेट, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज सोल्यूबल इन नेचर, तो ये पानी में सोल्यूबल रहेगा, तो ये यहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सोल्यूशन पॉइंट। अब तक क्या हम लोग को कहाँ मिला था चीज़ें, हम लोग को फिल्टर पे, पेपर पे मिली थी, नाउ ये हम लोग को मिलेगा सोल्यूशन पार्ट में मिलेगा और फिल्ट्रेट में मिलेगा। अगेन बिकॉज कॉपर सल्फेट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, राइट, तो अगेन वी विल प्रोसीड, third and fourth step is common for all. First, we will heat the solution till the point of crystallization. Then we will what, stop heating, right? और जो hot solution है उसको हल्का slowly cool करेंगे, right? and cool करेंगे तो crystal form बाहर आएंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, filter करेंगे and then dry करेंगे, then we will get the crystal of what, copper sulfate. Formula of copper sulfate is CuSO4, but because copper sulfate is hydrated in nature, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो इट विल व्हाट, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड इट विल फॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ CuSO4 डॉट 5 moles of H2O, and this 5 moles of H2O is only responsible for blue color, हाँ। कॉपर सल्फेट अगर आप अनहाइड्रस लेंगे तो इट इज कलरलेस, व्हाइट कलर का होता है, अंडरस्टूड। कॉपर सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का होता है, अगर डायरेक्टली आप लेंगे तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्कली, अल्कली का न्यूट्रलाइजेशन करना है बाय टू प्रिपेयर सोडियम सल्फेट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर सोडियम सल्फेट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ Na2SO4, or we can prepare potassium sulfate, that is K2SO4. now we will prepare Na2SO4, both are color same, तो आपको अगर पोटेशियम सल्फेट भी बनाने का है, K2SO4 बनाने का है, तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ NaOH यू विल यूज KOH, बस बाकी पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट करना है। Now, method of preparation, right? By action of dilute H2SO4 or acid on soluble base. कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग सोल्यूबल बेस लेंगे NaOH और KOH, और उसके अंदर H2SO4 डालेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। In this method, preparation is not reaction, it is a titration, titrometric reaction. टाइट्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, एक फ्लास्क में चीज लेते हैं, बीकर ब्यूरेट से हम लोग कुछ ऐड करते हैं और करते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम लोग रिएक्शन, टाइट्रेशन करते हैं, कैसे करना है देखे, देखो अब। what we will do, we will take a burette which is filled with what, dilute sulfuric acid, उसको हम लोग फिल करेंगे और उसको हम लोग बराबर यहाँ तक फिल करेंगे, जीरो यहाँ पे जो लास्ट होता है जितना चाहिए एग्जैक्टली हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। फिल कर लिए, now what we will do, we will pipette out NaOH, राइट ना, NaOH से रिएक्शन करना है तो NaOH क्या करेंगे, 25 ml पिपेट आउट करेंगे। पिपेट होता है, पिपेट आप सर्च मार सकते हैं कैसे होता है पिपेट, पिपेट कैसे दिखता है आपको दिखाता हूँ मैं,
नेट पर सर्च मार के, बिकॉज अभी मैं ऐसा बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, तो नेट पे दिखा दूंगा, अच्छा रहेगा। पिपेट, ये देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो पार्ट है ना बेटा, यहाँ से हम लोग सक करते, इसको हम लोग सोल्यूशन में डालते हैं, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन होती है, दिख रही है आपको यहाँ पे लाइन, वो लाइन तक अपने सक करने का, फिर इस पे उंगली रखने का, यहाँ पे उंगली रख देने का, तो ये अभी नीचे नहीं गिरेगा। अब इसको लेके आने का, और ये नीब को अपने जो फ्लास्क में चाहिए, फ्लास्क के अंदर मैंने नीब को डाल दिया, ये जो नीब थी वो नीब को मैंने क्या किया, फ्लास्क के अंदर डाल दिया, और अब ये उंगली को रिलीज कर दूंगा तो सबके सब सोल्यूशन नीचे आ जाएगा। ये 100 लिखा है, इसका मतलब ये 100 ml का है, मगर मोस्टली जो है 25 ml के भी होते हैं, तो 25 ml का डायरेक्ट हम लेंगे तो 25 ml इसमें आएगा। तो पिपेट इज apparatus we use to what take the solvent in calibrated form, or we can say in particular amount, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये ब्यूरेट में हम लोग ने क्या किया, H2SO4 को लिया, एंड यहाँ पर पिपेट आउट किया, बाय पिपेट का यूज करके 25 ml पिपेट आउट किया, किसको पिपेट आउट किया, NaOH को पिपेट आउट किया, एंड वी हैव टेकन in that solution, in NaOH, what we will do, we will add 1 or 2 drop of phenolphthalein. We know that phenolphthalein in basic medium shows pink coloration, तो ये because NaOH is basic in nature, जैसे हम लोग इसमें 1 or 2 drop क्या डालेंगे, phenolphthalein डालेंगे, तो it will turn into pink coloration, pink हो जाएगा। नाव हो गया, यहाँ हो गया, नाव, ये नाव को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ड्रॉप वाइज हम लोग हल्का हल्का सा खोल देंगे, तो ड्रॉप वाइज में ऐड होगा, एक एक ड्रॉप ऐसा ऐड होगा, यहाँ से एक ड्रॉप 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 ऐड होगा, तो ये ड्रॉप यहाँ से ऐड होते जा रहा है, एक एक ड्रॉप ऐड हो रहा है, तो ये ड्रॉप ऐड होते होते जाएगा, तो ये कलर गायब होते जाएगा। एक वक्त आएगा, ये पॉइंट जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी तरह से हो जाएगी, राइट ना, एस वो NaOH जितना ड्रॉप जा रहा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, सॉरी एसिड जितना ड्रॉप जा रहा है उतना NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड जितना जा रहा है वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। जहाँ पे सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना एसिड है ना बेस, तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सोल्यूशन, ये पिंक कलरेशन गायब हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वो ड्रॉप डालने के बाद एक आखिरी ड्रॉप डाला, वैसे समझ एग्जाम्पल 10 पॉइंट ये रीडिंग है, 10 ml डालने का, 10 ml डाला, 10.1 पे जैसे डाला वैसे क्या हो गया, ये कलर पूरा गायब हो गया, तो पूरा कलर गायब हो गया, इसका मतलब पॉइंट जो है मेरा मेरा मतलब ये पर्टिकुलर 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10.1 ml जो है वो H2SO4 लग रहा है, ऐसा मेरे को समझ में आया, राइट ना। और ये जो कलर चेंज जो है वो क्या दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एंड पॉइंट मीन्स व्हाट, जहां पर रिएक्शन न्यूट्रल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गई, समझे आप लोगों को, यहाँ पे रिएक्शन जो है न्यूट्रल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गई, अंडरस्टूड। अब ये सोल्यूशन है, यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन हो चुका है, राइट ना, हम लोग को ये न्यूट्रल क्यों हुआ है, बिकॉज ना एसिड है ना बेस है, अब वो सॉल्ट एंड वाटर बन चुका है, तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन चुका है, क्या बना है, Na2SO4 एंड H2O बना है, तो इसमें से इसको लूंगा मैं एक एवापोरेटिंग डिश में, एंड हीट करूंगा तो क्या होगा, वापस से वही, इसको हीट कब तक करूंगा, इट विल हीट इट टिल पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक हीट करेंगे। व्हेन यू हीट दिस ना, वाटर विल एवापोरेट, वाटर क्या होगा, ये वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, और इवन कभी कभार ये ब्लैकिंग, यहाँ ब्लैक क्यों दिखाया गया, बिकॉज यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी उड़ता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लैक कलर की गैस होती है, कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक हीट करेंगे, सेम पूरा वापस से वही है, हीट करने के बाद उसको कूल करेंगे स्लोली, आफ्टर कूलिंग यू विल गेट व्हाट, क्रिस्टल्स ऑफ Na2SO4.2 10 मोल्स ऑफ वाटर, ये मिलेगा इसका क्रिस्टल, और उसको ड्राई करेंगे, और उसके बाद यू विल गेट ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, अंडरस्टूड। Yes, tell me, understood or not? All of you understood? Okay, thank you. Next one. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सम जनरल सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी, ये सब कर चुके हैं, वापस से रिपीट दिया है, लास्ट पेज है ये चैप्टर का, मतलब इसके बाद दूसरा चैप्टर थर्ड का बी पार्ट स्टार्ट होगा, तो ये जो दिया हुआ है वो ये सब कर चुके, रिएक्शन वापस से दिया हुआ है। तो क्या दिया पहला वाला कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इफ यू टेक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट,
है ना। किसी का भी रिएक्शन करना है, सिंपल क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के बाद लेके नेगेटिव को पॉजिटिव को लेके जाने का, जो बनेगा बना दो। एग्जाम्पल कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया है तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, when you react with HCl, what will happen, Na will goes to Cl part, so you will get NaCl, right? Here this H as I told you, हाइड्रोकार्बोनेट में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन एक ही मिलता है, एंड you will get H2O, एंड CO2 जो है वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड, हाँ या ना, राइट। कैल्शियम bicarbonate, let me take the example of calcium bicarbonate. Calcium is Ca, H means bi, and carbon means CO3. Because Ca valency is +2 and bicarbonate valency is -1, so I will put 2 over here, right? तो इसको मिटा देते हैं, right? तो ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 twice, right? CaHCO3 twice, right? Now if you react with this with HCl, what will happen, Ca will goes to Cl and H will goes to this, so what will happen बेटा, सेम होगा, Ca क्या होगा, Cl के पास जाएगा and CaCl बनेगा, because Ca is valency +2 and Cl valency is -1, so I will put 2 over to balance out. So बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ 2 होगा तो उसको हम लोग 2 लगाएंगे, बिकॉज H 2 है तो ये 2H, यहाँ पे भी 2H है, तो यहाँ के कितने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉरी CO3 इज ऑल्सो 2, सब 2 2 है, राइट। ये समझ में आ गया ना। अभी हम लोग पास क्या क्या है, H2 है यहाँ पर भी H2 है और CO3 भी 2 है, ये ट्वाइस मतलब 2 2, तो ये 2H और ये 2H यहाँ के 2 ऑक्सीजन को लेंगे और +2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, बिकॉज 2 कार्बन में से 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो क्या बचेंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। अंडरस्टूड, समझा, ओके। नाउ we will take another example of carbonate, calcium carbonate ले लेते हैं, CaCO3 calcium carbonate का formula, if you react with HNO3 what will happen, Ca will go to NO3 and this H will goes to CO3, you will get what, CaNO3, right? The valency of calcium is +2, this valency is -1, so balance करने के लिए इसको ब्रैकेट लगा के ट्वाइस करेंगे, ये बैलेंस हो चुका है, और ये Na3 ट्वाइस हुआ तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, ये जो OH है 2H क्या करते हैं, यहाँ के ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बता चुका हूँ, और क्या बनाते हैं, पानी, और यहाँ बचा गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व। अंडरस्टूड, बोलो। Now we will take an example of sodium sulfate. So sodium sulfate, when you react with sodium sulfate with HCl, तो sodium will goes to Cl part, तो NaCl फॉर्म हो जाएगा, ये H जो है अगेन यहाँ से SO3 में से एक ऑक्सीजन लेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी वाटर बनाएगा, बचेगा क्या, SO3 में से एक ऑक्सीजन गया, बचा क्या, SO2। समझा, एकदम इजी है, वैसे ही था। लास्ट पार्ट करते, फिर आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, सल्फाइड को अगर रिएक्ट करेंगे, आयरन टू सल्फाइड को H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, what it will form, Fe will goes to SO4, it will form FeSO4, understood, H will goes to S part, so it will form H2S, because H2S is also gas, तो ये क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगी। अंडरस्टूड, इसके आगे सबके आगे इवॉल्व नहीं दिखाया, आपको दिखाना है, कंपलसरी याद रखना, जो उड़ सकता है जो गैस है उसको हमेशा ऊपर दिखाने का। अंडरस्टूड, समझा बेटा। लास्ट पार्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, लास्ट पार्ट इज दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हम लोग को करना है। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, कोई भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, हम लोग को एक एसिड मिलेगा एक बेस मिलेगा, समझ के लो। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, व्हेन यू रिएक्ट विद वाटर व्हाट विल हैपन बेटा, ये पॉजिटिव है, इट विल गोस टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बाद जाएगा, यू विल गेट व्हाट, NH4OH एंड HCl। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा बेसिक रहेगा, जब पानी में ये सॉल्ट डालने के बाद क्या बनेगा, सोल्यूशन एसिडिक बेसिक। तो बेटा क्या बन रहा है, देखो ये क्या है, वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है, एंड दिस इज वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नहीं बताया तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप जाओ नेट पे और सर्च मारो कि लिस्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट निकालो और उसको याद करो, ये आपको फ्यूचर में हर जगह लगने वाला है, नीट जेई सीटी जितने भी एग्जाम देने हैं वो सब में लगने वाला है, तो आपको इसके लिस्ट अभी याद करेंगे तो बेटर है। तो वीक बेस है, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट ना, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या आएगा, एसिडिक रहेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता तो बेसिक होता, दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो न्यूट्रल होता। अंडरस्टूड, समझा, राइट।
Let me take another example of what NaHCO3. When you react NaSCO3 with water, if you dissolve NaSCO3 in water, H and OH, what will happen? Same, Na will goes to OH part, H will goes to this part, and what I will get? I will get NaOH, right? And this H will goes to H, this part, so I will get H2CO3. This is a weak acid and this is a strong base. Since the base is strong over here, so this is alkaline in nature, or we can say basic in nature. Understood? Understood? So this both reaction is similar to above two reaction. You can do it by yourself. These two reaction is homework for you, right? So you can do it by yourself and see the whether the solution is acidic and basic. Please see, and if you have any doubt, you can ask me in next lecture. राइट नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको इससे पहले बताया था, नहीं बताया तो आप देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ। ये सम पॉइंट दिए हुए हम लोगों को। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। लाइक CuSO4 ऑलवेज एब्जॉर्ब 2 moles ऑफ वाटर। CaSO4 absorb 2 moles of water is called as gypsum. CuSO4 absorb 5 moles of water, it is called as what? Blue vitriol, right? Similar kind of MgSO4 absorb 7 moles of water. So this water absorption is nothing but a what? Water of crystallization. कोई भी सॉल्ट कितना पानी एब्जॉर्ब करता है और वो पानी इसके अंदर जाता रिएक्ट नहीं होता है, बस उसके साथ डॉट करके हम लोग लगाते हैं, डॉट लगा के हम लोग आगे लिखते हैं। तो कितने मोल एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये यहाँ पे 2 moles ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ 5 moles ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ 7 moles है। अंडरस्टूड? समझा? डेलिक्वेशन सॉल्ट मतलब क्या होता है? डेलिक्वेशन सॉल्ट, द सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड चेंजेस इनटू सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डेलिक्वेशन सॉल्ट। मैं अभी बताया था आपको, वो सॉल्ट जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और पिघल जाता है, राइट ना। सॉल्यूशन बन जाएगा, पिघल जाएगा, बहुत दिन रखेंगे तो पूरा पानी हो जाएगा, तो पानी पानी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डेलिक्वेशन सॉल्ट, राइट ना। एफोल्युसेंट सॉल्ट मतलब ये अपोजिट टू डेलिक्वेशन है। मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट है बेटा। मतलब ऐसा सॉल्ट जो पानी एब्जॉर्ब कर चुका है, राइट ना, पानी एब्जॉर्ब कर चुका है, अगर उसको मैंने क्या किया, हीट करा या फिर कोई एटमॉस्फेयर में मैंने रख दिया, तो वो पानी को उड़ जाएगा। ये पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो आसानी से पानी को उड़ा देता है, मैंने हीट नहीं किया, मैंने क्या किया, एटमॉस्फेयर को एक्सपोजर दिया, मतलब सन के अंदर नीचे रख दिया, सन के नीचे रख दिया, तो ये पानी उड़ जाएगा। जिस सॉल्ट का पानी आसानी से उड़ जाता है उसको बोलते हैं एफलोरेसेंट सॉल्ट। अंडरस्टूड? समझा? So here we have completed chapter number 3 ka A part. Next time, because time is over now, so next time we will do this 3 point B part. It is very small topic. 4 to 5 slides are there. We will do it or next time. ये completion के बाद we will start our next topic, that is electrochemistry, right now. So if you have any doubt in next means till yet, you can ask me on WhatsApp. Even if you have any doubt, you can ask me in next lecture. Understood till yet, all of you? Very good. What about other students? Yes, I am recording better. I am recording in my next means another device, that is Zemisar 2. Okay. Yeah. Arya, Saksham, understood? You're not responding better. Okay, okay, beta. Thank you so much. So we will stop over here. Next time we'll start with chapter number 3B, right? And what is your homework? Your homework I will upload in what your Google Classroom, so you can see over there and complete your homework. Right? Thank you so much.